you something regarding this trigonometric identities. So, in 10th class we have 3 different types of these basic trigonometric identities. So, first we will prove that sin square theta plus cos square theta is equal to 1, where 0 less or equal to theta less or equal to 90 degrees. यानी जब हम ये आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ हम प्रूव कर लेंगे. मैट्रिक का क्लास है, हम बड़े बड़े एंगल्स के लिए भी हम ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन वजह यह है कि मैट्रिक में हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही यानी 0 to 90 डिग्री तक ही महदूद रखा है अपना सिलेबस. वरन जो हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम जो होता है, वहाँ पर हम 360 से आगे भी जा सकते हैं. जब कोई मशीन घूमती है, जैसे हमारा मोटर घूमता रहता है, तो बहुत ज़्यादा एंगल्स बड़े बनते हैं, लेकिन यहाँ हम महदूद रखेंगे 0 to 90. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, इसके दरमियान जो फिगर बनती है, जितने भी एंगल्स आती हैं फ्रॉम 0 to 90, उन्हीं के बारे में हम फिलहाल इसको प्रूव कर लेंगे. हालांकि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. पहली बात यह कि what is difference between this trigonometric identity and equation. Equation is true for certain values of the variable, but identity is true for almost all the values of the theta. Almost because for some values it may not be defined extra. So, let us prove this sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Suppose this is known as initial line, this is known as terminal side. Suppose this terminal side starts from this initial line and trace out an angle, some angle, denote it by theta, where theta lies between 0 and 90. Let OP terminal side, OP terminal side starts from initial side OX, initial side OX, trace out an angle, XOP, equal to theta in the anti-clockwise direction, means the positive angle, anti-clockwise direction. So, angle XOP equal to theta. At any place P, means हम OP को जितना चाहेंगे लंबा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, उससे हमारे एंगल के रेशियोज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. At any point P, draw PM perpendicular on OX. Then from right triangle PMO, then from right triangle or right angular triangle, one and the same thing, right triangle OMP. जो हमारे पास ये राइट ट्रायंगल बन गई OMP, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे. बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स PM स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स OM स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स OP स्क्वायर. Let us compare this PM square plus OM square is equal to OP square with a given question. We see two terms combined with positive sign, here two terms combined with positive sign.
and on the right hand side we have 1, here it is OP square, suggests that we should divide both sides by OP square. So dividing both sides by OP square, dividing both sides by OP square, or we get PM square plus OM square divided by OP square. Then we can separately divide them OP square because we can take LCM as OP square. तो अलग अलग टर्म्स को यहाँ अलग OP स्क्वायर डिवाइड कर लेंगे, यहाँ अलग कर लेंगे, यहाँ अलग करेंगे. इस तरीके से हम यहाँ OP स्क्वायर LCM भी ले सकते हैं. तो एक ही आएगा, इज इक्वल टू OP स्क्वायर डिवाइडेड बाय OP स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स ये दोनों टर्म्स पर ये PM होल स्क्वायर होता है एक्चुअली. तो हमारे लिखने का तरीका होता है कि PM स्क्वायर, एक्चुअली होता है PM होल स्क्वायर. सो वी कैन राइट इट एज PM by OP whole square, just like this. Similarly, यहाँ it is actually OM whole square, this is OP whole square, so we can write it OM by OP whole square, OM by OP whole square. This is OP square by OP square, same, is equal to 1. Now we will see that here, hence PM by OP means perpendicular by hypotenuse, and perpendicular by hypotenuse is sine theta, angle is theta. So it is PM by OP is sine, angle is theta, whole square, always written on this T ratios, not on the angle. So square is written as on the T ratio, not on the angle, except some places which I shall show after this. Sine square theta, OM by OP, OM by OP means cos, angle theta, और ऊपर लिखा है वो स्क्वायर इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. It is defined right from 0 to 90. You can take any angle between 0 and 90, including 0 and 90, whole of the first quadrant. So we say where 0 is less or equal to theta is less or equal to 90. That means it is defined at also theta is equal to 0 and also at theta is equal to 90, because sin 0 is equal to 0 and cos 0 is equal to 1. Sin 90 is equal to 1 and cos 90 is equal to 0. So it is defined. So we can write that theta lies between 0 and 90. Only first quadrant for 10th class. After that we can take any value of theta. It is true for all values of theta. Lekin for the 10th class we take only first quadrant between 0 and 90. मैंने कहा था कि ये स्क्वायर हम तो डालते हैं टी रेशोज पर, लेकिन अगर ऐसा होगा किसी वक्त, it is not same thing. Sin inverse theta is never equal to sin theta whole raised power -1. ये -1 वाली बात जो है हम ये टी रेशोज पर नहीं डाल सकते हैं. दिस इज एन इनवर्स फंक्शन, टोटली डिफरेंट फ्रॉम this sin theta whole raised power -1 means 1 by sin theta. This is inverse of sin theta, लेकिन this is sin inverse function, so they are different things. जब ऐसी हालत होगी नेगेटिव पावर जब हुई है तो इस पर हम नहीं डाल देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव इनवर्स फंक्शन कुछ और चीज़ होती है. तो इसीलिए मैंने कहा इसके बगैर जितने भी पावर्स होंगे, पॉजिटिव में पावर्स होंगे, तो इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर डाल देते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट this trigonometric identity, basic identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Out of this identity we can write it in 3 different ways. For example, so we have to remember first thing, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. सेकंड, अगर हम इस एक आइटम को, ये दो हमारे पास हैं साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, एक को दाईं तरफ ले लीजिए तो यहां रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और
हम यहाँ cos स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, let us keep cos square theta here and transfer this sin square theta on right hand side. We will get cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. So the same thing can be written in 3 different ways. और जब हम एंटिटीज का सोल्यूशन कर लेते हैं तो वहाँ हमें बार बार इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कभी ज़रूरत पड़ता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ता है, कभी 1 के बदले ये लिखना पड़ता है। और यूजुअली हम कभी चेंज कर लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करते हैं विद 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और कभी हम रिप्लेस करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विद sin स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली we replace cos square theta by 1 minus sin square theta, or we replace 1 minus sin square theta by cos square theta. Now we will go for another entity, second entity. बिल्कुल अगर हम यही तरीका अख्तियार कर लेंगे तो सेकंड आइडेंटिटी विच वी हैव टू प्रूव दैट tan square theta plus 1 is equal to secant square theta. Tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. लेकिन यहाँ बाद में बताएंगे, ये मैं जो इसकी कंडीशन रहेगी 10th क्लास के लिए वो रहेगी 0 लेस और इक्वल टू थीटा लेस देन 90, इसलिए कि बिकॉज tan 90 इज अनडिफाइंड. Same in the case with sec 90. Both are undefined for 90 degree. इसलिए we write it below 90, not exact 90. So proof. अब जैसे हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में डिटेल्ड लिख लिया कि let us draw this terminal side OP starts from its initial side OX, trace out an angle XOP such that angle XOP is equal to theta. Then we draw PM perpendicular from any point P. यानी OP को हम छोटा करके भी लिख सकते हैं, लंबा करके भी लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट P से हम ड्रा कर सकते हैं परपेंडिकुलर PM. लेकिन हम सिंपलिसिटी में ऐसे भी लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल OMP. यहाँ एक बात का बताना बेहद ज़रूरी है, अगर एग्जाम में ऐसा आया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये कंडीशन नहीं लिखी हुई है तो ये ग्राफ का नोशन देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ग्राफ का नोशन तब देना है अगर ये कंडीशन लिखी हुई है, दिस मीन्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90. तो अगर ये चीज़ लिखा हुआ तो ऐसे ग्राफ का नोशन देना है. अगर ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है तब ग्राफ का नोशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल OMP, कोई भी राइट ट्रायंगल फिर चलेगी. बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर. वही तरीका जो हमने पहले एंटिटी के लिए यूज किया, फिर मैंने वही दोहरा दिया कि PM स्क्वायर ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. लेकिन एक डिफरेंस यहां रहेगी कि इस बार अगर हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के साथ, हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड इस बार 0 नहीं है. जाहिर सी बात है कि वी कैन नॉट डिवाइड बोथ साइड्स बाय OP स्क्वायर, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड 1 नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म 1 है, ये कभी लेफ्ट में भी हो सकती है, कभी राइट में भी हो सकती है. जैसे चेक करना पड़ेगा कि tan कैसे बनता है. tan जब बनाना होता है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो PM आएगा परपेंडिकुलर. दिस सजेस्ट्स दैट वी हैव टू डिवाइड बाय OM square. So we will divide both sides by OM square. Dividing both sides by OM square. So we get PM square डिवाइड हो गया इस टर्म का OM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर डिवाइडेड बाय OM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर डिवाइडेड बाय OM स्क्वायर. और we see this can be written as PM divided by OM whole square प्लस ये दोनों सेम है तो 1 बनेगा इज इक्वल दिस इज OP बाय OM
whole square, or PM by OM means perpendicular by base. PM is perpendicular, OM is base, means perpendicular by base, that is tan, and angle is theta. So PM by OM is tan theta, and power of the expression is 2, so we write 2 here, tan square theta. हमेशा जो पॉजिटिव पावर होता है वो टी रेशोज के ऊपर लिखा जाता है, न कि एंगल पर. सो पी एम बाई ओ एम इज टेन थीटा, ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है वो टेन स्क्वायर थीटा प्लस और 1 अलहदा है, इज इक्वल राइट हैंड साइड में ओ पी बाई ओ एम. ओ पी मीन्स हाइपोटेन्यूज, ओ पी ओ एम मीन्स बेस. सो हाइपोटेन्यूज बाई बेस इज सेक, एंगल इज थीटा, सो वी कैन राइट सेक थीटा, और ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ, तो हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. अब हम थोड़ा सा टेस्ट लेंगे कि अगर 0 लिखेंगे, tan 0 इज इक्वल टू 0 एंड sec 0 इज इक्वल टू 1, सो बोथ आर डिफाइंड. tan 0 at sec 0 both are defined, means theta can take value 0. But let us test it for 90. We see that tan 90 is undefined, means 1 by 0 undefined, and sec 90 is also undefined. इसीलिए हम देखते हैं वायर जो हमारा थीटा है 0 से तो ये शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ इक्वलिटी आएगा, लेकिन 90 में हम ऐसे लिखते हैं लेस देन 90 इस आइडेंटिटी के लिए, जबकि पहली वाली आइडेंटिटी के लिए हमने 90 को शामिल किया था. तो वी प्रूव्ड दिस आइडेंटिटी 2 कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज. जैसे मैं दिखाऊंगा कैसे 3 तरीकों से हम इसको लिख पाते हैं. एक तो ये खुद है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या अगर 1 यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. एंड द सेकंड वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग इज कि हम यहाँ लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. और बहुत ही इंपॉर्टेंट वे ऑफ राइटिंग दिस आइडेंटिटी इज कि हम टेन स्क्वायर को यहां लेंगे, यह आएगा राइट हैंड साइड में था सेक स्क्वायर थीटा, माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 1, जैसे हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इन द सेम वे वी कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज द थर्ड. सो वी कैन राइट दिस आइडेंटिटी इन 3 डिफरेंट वेज, either in the way of tan square theta plus 1 is equal to sec square theta, or tan square theta is equal to sec square theta minus 1, or sec square theta minus tan square theta is equal to 1. So now we will discuss the third identity, third and final identity. Prove that वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. वायर यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है, 0 यहां इंक्लूड नहीं होगा, 0 लेस देन थीटा, लेकिन 90 इंक्लूड होगा. क्यों? बिकॉज कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड, कोसेक 0 इज नॉट डिफाइंड, जबकि cot 90 0, cosec 90 0, so cosec 91. So proof, when we take it as proof, we will write it like this. अगर यहाँ कंडीशन लिखी हुई है, then we have to draw this graph, x axis, y axis, and then we can make this right triangle just like this के OP. ऐसे मैं लिखूंगा यहाँ, थर्ड में फिर लिखूंगा मैं the terminal side OP, the terminal side OP starts from initial side OX, initial side OX, trace out an angle, trace out an angle XOP equal to theta in anti-clockwise direction, so that angle will be
पॉजिटिव। इतना तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ मैंने एरो से दिखा दिया XOP in anti-clockwise direction, so that angle will be positive. Trace out an angle XOP equal to theta. At any point P, draw PM perpendicular on OX, then from right triangle OMP, तब बनती है हमारी right triangle. Then from राइट ट्रायंगल OMP, अब हमारे पास OMP राइट ट्रायंगल बन गई, और वो भी बन गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हर बार तीनों एडिटिव्स में यही हम यूज कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हर बार ये यूज कर लेते हैं। लेकिन यहां एक चीज कर लेंगे, याद आपकी मतलब याद कैसे रहेगा, जो पहला अगर आप तरतीब के साथ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां हमने इसका स्क्वायर डिवाइड किया, OP स्क्वायर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय OP स्क्वायर। और जो हमने दूसरी एंटिटी ले ली 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, वहां हमने OM स्क्वायर दोनों तरफ डिवाइड कर लिया। जाहिर सी बात है एक साइड अभी बचा हुआ है, तो यही अब हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय PM स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय PM स्क्वायर। तो यह आएगा PM स्क्वायर डिवाइडेड बाय PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर डिवाइडेड बाय PM स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा OP स्क्वायर डिवाइडेड बाय PM स्क्वायर। सेम थिंग कैन बी रिटन एज लाइक दिस कि PM स्क्वायर क्रॉस आउट हो गया 1 प्लस दिस इज OM बाय PM होल स्क्वायर इज इक्वल टू यह आएगा OP बाय PM होल स्क्वायर। हेंस 1 प्लस OM बाय PM मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर, cot OM by PM base by perpendicular means cot, angle is theta means cot theta, ऊपर जो लिखा हुआ है स्क्वायर ये इस T रेशो पर डालेंगे, cot स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू OP by PM, OP means hypotenuse, PM is perpendicular means hypotenuse by perpendicular which is cosec, and angle is same theta और ऊपर से स्क्वायर। इतना तो प्रूव कर दिया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम ट्राई कर लेंगे 0 और 90 पर, हम देखते हैं कि कॉट 0 जो है दैट इज 0 बिकॉज tan 0 इज अनडिफाइंड, तो कॉट 0 हो गया 0, कोसेक 0 इज जैसे साइन 0 कोसेक 0 इज अनडिफाइंड, तो ये 0 पर डिफाइंड नहीं है, इसीलिए यहां लिखते हैं वायर 0 इज लेस देन थीटा, इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, क्या कितना ये 0 पर tan 0 होता है तो cot 0 अनडिफाइंड है, कोसेक 0 अनडिफाइंड है, तो 0 नहीं आएगा इसमें शामिल। लेकिन 90 आता है क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड है, cot 90 इज इक्वल टू 0 और sin 91 इसलिए कोसेक 90 भी 1, तो 90 लिया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने तीनों जो एंटिटीज दिखा दी। अब यहाँ इस एंटिटी को हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं ताकि 9 फार्मूले हमारे पास से बन जाएंगे, 9 डिफरेंट फार्मूले जिनको हम बाद में एक्सरसाइज में यूज कर लेंगे, तभी तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। one way of writing is this and it is second way is जैसे हम
कॉट स्क्वायर को अगर यहाँ रहने देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ राइटिंग इज कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉट स्क्वायर यहाँ ट्रांसफर कीजिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के भी 3 तरीके हमने दिखा दिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 3 तरीके दिखा दिए। और लास्ट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके भी 3 हमने तरीके दिखा दिए। अब मैं थोड़ा सा इसका एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ एक और तरीके से, कि मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव द अदर 2 रिलेशंस। मान लीजिए ये तो दिया हुआ है, दिस इज गिवन। अगर ये हमारे पास गिवन है, देन वी हैव टू डिड्यूस द अदर 2 रिलेशंस। वन टाइम आप पहले कीजिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें डिवाइड रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां आएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि साइन में भी स्क्वायर है, कॉस में भी स्क्वायर है, ये दोनों कैंसल होंगे तो 1 आएगा, और यह आएगा 1 मीनस 1 स्क्वायर, और यहाँ कॉस्टा का भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ले लेंगे। हेंस क्या बनेगा इस तरीके से कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस इज टेन थीटा, और ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय कॉस इज सेक थीटा, एंड ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। सो वी प्रूव्ड in simple terms, if you can prove sin square theta plus cos square theta is equal to 1, you can deduce from this that 1 plus tan square theta or tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. Similarly, if we divide both sides by sin square theta, dividing both sides by sin square theta, you will see we get sin square theta by sin square theta plus cos square theta by sin square theta is equal to 1 by sin square theta, or this is 1 plus cos theta by sin theta whole square is equal to 1 by sin theta whole square. Hence we deduce that 1 plus cos theta by sin theta is cot theta, ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 by sin theta is cosec theta, ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। Hence we deduce that 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. In this way we completed the basic trigonometric identities, the ideas behind solving the trigonometric identities, trigonometric equations, etc. So I complete this class. Hope you may have learned something out of this trigonometry. Thanks.